بھائی 2 منٹ کے لیے ذرا سا بیٹھ جائیں. میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کہوں یا نہ کہوں, کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ جو کچھ نیک کام کرو اس کو تو چپ چھپا کے کرنا چاہیے, اخلاص سے کرنا چاہیے. اس کو ظاہر کرنے کا کیا مطلب؟ لیکن پھر دوسری طرف ہوتا ہے کہ نہیں, اگر تمہارے ظاہر کرنے سے کسی دوسرے کو کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور وہ کرنے کے اوپر آمادہ ہوتا ہے تو پھر بتانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہوں گے کہ بتانا چاہیے, تو میں اس طرح سے پوچھ رہا ہوں. بزرگوں اور دوستو, ہم کس جگہ پر ہیں پہلے تو یہ تصور کرو. سپر پاور کے علاقے میں ہے, سپر پاور کے نیچے ہے. ان ساری سپر پاوروں کو چھوڑ دو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, ہمیں اس سے چاہیے بھی نہیں اور ہم اس میں سر بھی نہیں مارتے. لیکن علاقہ وہ ہے تو اثر تو اس کا ہو ہی گا. ایسے علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے, اپنے رمضان گزارنے کے لیے, اپنے رمضان کی عبادت کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھید جانتا ہے. اور ایسے وقت میں دین کے بہت سارے کام ہیں, پڑھنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے, شیخ الحدیث بھی ہے, شیخ التفسیر بھی ہے, مقرر بھی ہے اور واعظ بھی ہے, اور بہت سارے اعلیٰ کے اعلیٰ درجات کے ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں نے ان ساری چیزوں میں آپ لوگوں کو جو منتخب کیا, وہ کس چیز میں منتخب کیا آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا. ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں, اچھی اچھی بلڈنگوں کی کوئی حیثیت نہیں, اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ہے, کوئی حیثیت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو مکان بنا رکھے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کسی کام کے نہیں. لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے وہ اس وجہ سے کہ تمہارے پاس ایک دولت ہے, وہ دولت ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے, اس ایمان کی دولت کو یہاں بھیجا کہ جو کام انبیاءوں کے ذریعے سے لیا جاتا تھا دعوت کا, وہ کام ہم جیسے گنہگاروں سے لیا جا رہا ہے. اب اگر یہاں آنے کے بعد ہم اس قسم کے کام میں ذرا سے بھی توجہ نہیں کریں گے, پیسے کمانے میں اور کار کمانے میں ہی لگے رہیں گے, تو پھر ہماری حال یہی ہوگی. بہرحال میں تو شروع مہینے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں چاہیے مجھے. اللہ جل جلالہ نے شہر رمضان کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا ہے. قرآن کی بہت بڑی نسبت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے متعلق. حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سنانے آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو دور سناتے تھے. 12 تقریروں میں تم نے سنا ہوگا. یہ قرآن ہی کی نسبت ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی جگہ میں جو ساری غفلتوں کی جڑ ہے, پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں غفلتوں کی جڑ ہے یا نہیں, دنیا کی جڑ ہے یہ. ایسی جگہ پر ہر جڑ میں سے, ہر کوپل میں سے, ہر پتی میں سے ایک فتنہ نکلتا ہے اور تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. غور کرنا اس بات کے اوپر, میری بات غلط لگے تو مجھے بتانا. ایسے جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا کلام دے کر بھیجا ہے, اپنا قرآن دے کر بھیجا ہے. اور اس قرآن کی جتنی تلاوت کرو گے, اس قرآن پر جتنی توجہ دو گے, اس قرآن پر جتنا خیال رکھو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نورانیت پھیلاتا چلا جائے گا. تقریر نہیں کرنا مجھے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بڑا سخت. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ابھی سنو گے تو آپ کو سخت لگے گا, ہے سخت لگے گا, لیکن اتنا سخت نہ لگے. اس لیے آپریشن سے پہلے ذرا سا وہ کیا کہتے ہیں اسے, آپریشن سے پہلے کچھ سنگاتے ہیں کہ نہیں, تاکہ وہ کاٹے کا اثر نہ لگے, اس لیے میں یہ سنا رہا ہوں. بزرگوں اور دوستوں,
अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे तो कुछ होता नहीं, लेकिन पहले साल से जब पहली मर्तबा मैंने यहाँ शुरू किया था, या आप लोगों ने शुरू करवाया था, पहले साल से अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत दी थी, और वो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने ये दी थी कि हर रोज 24 घंटे में एक आदमी रोजाना कुरान पाक को पूरा करता था। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन बता रहा हूं कि पहले साल अल्लाह ने ये मुझे नेमत दी थी, और उस वक्त से मैंने भी कोशिश की है, मेरी कोशिश तो वैसे ही है, मैंने कोशिश की है कि अल्लाह करे ऐसा हो कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने का तवज्जो हो जाए, कुरान पढ़ने की तरफ लोगों का ध्यान हो जाए। आज हम लोग कुरान पाक को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, जिस ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिस दिल से पढ़ना चाहिए, हमसे नहीं होता। जानते हो, आप कहते हैं मैंने 10 कुरान ख़त्म किए, 12 कुरान ख़त्म किए होंगे, लेकिन कुरान का जो मकाम है वो हमसे अदा नहीं होता। फिर उसके बाद दूसरे साल अल्लाह तबारक व तआला ने, वो तो आदमी है, कोई आता है जाता है, वो नहीं आया, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे साल एक आदमी पैदा कर दिया। एक नहीं 2-3 थे, लेकिन दूसरे साल पैदा हो गया। और ये कमाल की बात थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने पनामा में ही पैदा किया। मैं कहा करता था वहाँ मेरे पास पढ़ने वाले तलबा को, हाफिज़ों को, मौलवियों को, कि डूब मरना चाहिए। तुम लोग हाफिज़ हो, कुरान पाक को पढ़ते रहते हो, लेकिन महीने में तुमसे एक कुरान पूरा नहीं होता, महीने में एक कुरान पूरा नहीं होता। मैंने कहा जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर आमी आदमी है, आमी, न हाफिज़ है, न मौलवी है, न कुछ, लेकिन रोज़ा ना कुरान पूरा करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी हटा दिया। मैं फिर सोच में पड़ गया कि अल्लाह, एक नेमत थी वो भी ख़त्म हो रही है। गुज़िश्ता साल और इस साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप हजरात को ये कहना चाहता हूँ कि लैटिन अमेरिका में शायद ही ये मस्जिद है, या अगर आपको खुशी हो तो बताऊं कि शायद ये पनामा के एक मस्जिद है कि जिस मस्जिद में 6 आदमी रोजाना कुरान पाक को ख़त्म करते हैं, और इनके अलावा 12, 18, 12, 14, 15, 16, 17 वाले तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो रंज हो, ये बात जो मुझे कहना डर था, मैं पनामा का एक भी आदमी नहीं, पनामा का एक भी आदमी नहीं। पनामा वाले सिर्फ डॉलर कमाने ही के लिए आए हैं, या इनको नेकी कमाने की जरूरत नहीं। क्यों वो खुद मेहनत नहीं करते? क्यों वो अपने लड़कों से मेहनत नहीं करवाते? बुजुर्गों और दोस्तों, हम देखते हैं इंडिया में, हमारे सामने मिसालें हैं कि जब हमारे हमारे इलाके में मदरसे नहीं थे तो हमारे लड़के दूसरी जगह जाकर इल्म हासिल करते थे। वहाँ से जब इल्म हासिल करके आए तो अपनी जगह पर मदरसे कायम किए, वहाँ से कोई पढ़ने नहीं आता। तो इस वजह से मैं, अगर आप लोग छुपाते हैं तो बहुत अच्छा है, मैं अपनी जहालत को कबूल करता हूँ, लेकिन कुरान पाक की तिलावत पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करो, ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करो। अभी 4-5 दिन का रोज़ाना का नंबर मैं बता सकता हूँ कि आज इतने कुरान ख़त्म हुए, आज इतने ख़त्म हुए, आज इतने ख़त्म हुए, आज इतने ख़त्म हुए। लेकिन बताना नहीं मुझे, लेकिन आपको बता रहा हूँ, दिखला रहा हूँ, आईना दिखला रहा हूँ कि इसमें तुम तलाश करो पनामा वाले कितने हैं। बहुत दीनदार का धोखा लेकर हम चल रहे हैं, हम बहुत दिन वाले हैं। एक कुरान भी अभी तक ख़त्म हुआ? अगर तुम कहो तो इसमें अभी मैं बता सकता हूँ हाथ रख कर के इसने एक भी कुरान ख़त्म नहीं किया। लेकिन मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता, मैं आपको अपनी हालत बताना चाहता हूँ कि क्या कर रहे हो तुम।
लोग तो तकरीर करके तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे और इस तारीफ पर तुम खुश हो जाओगे। मैं वैसा नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर सलाह आए, आखिरत की फिक्र आए, कुरान का दर्जा आए, नमाज का एहतराम आए। अभी जरा सी थोड़ी देर पहले की बात है, खानका है, मस्जिद है, और जरा से एक ने यूं मार दिया और एक ने यूं मार दिया और दोनों लड़ने तैयार हो गए। क्या ये खानका है? यहाँ ये बात ऐसा चल रही, यूं क्यों नहीं सोचते तुम कि मैं तो यहाँ आया हूँ इस्लाह के लिए, मुझे चाहे तो गालियां दो, मैं कुछ करने का नहीं। ये जज्बा क्यों नहीं पैदा करते तुम लोग? किस तरीके से ये जज्बा पैदा होगा? इसलिए मैं तो पहले कहता हूँ खुद में सच तो ये है कि मुझ में ही सलाहियत नहीं, कुएं में नहीं तो हौज में कैसे आएगा? लेकिन आपके पास तो एक कुआं नहीं है, हजारों कुएं हैं, फिर कहाँ गए तुम्हारे हौज? इस वजह से औरतों से भी मैं कह रहा हूं कि ये दुनिया है और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को हमारे लिए आजमाइश के लिए बना रखा है कि हम इस आजमाइश में कामयाब होते हैं या नहीं। आपने देखा होगा कि चूहेदानी में चूहे को आजमाने के लिए वो अनाज रखा जाता है, वो जाता है खाने के लिए, खिंचता है तो रुक जाता है। वो यही हाल हमारा है। 5 दिन बाकी रह गए हैं, नहीं 6 दिन होंगे, चलो 5 दिन भी सही, 6 दिन भी सही। अगर अल्लाह, हज़रत शेख से मैंने एक मरतबा तुम्हें तकरीर में बताया था कि हज़रत शेख नव्वरल्लाह मरकज़ों को साथ में लेकर मैं चलता था, खादिम भी थे, साथ में लेकर चलते थे। हज़रत चल नहीं सकते थे। मस्जिद में कदम रखा था, फरमाया बिस्मिल्लाह नवैतल इतिकाफ। जरा जरी था बोलने में, तो मैंने उसी वक्त हजरत से कह दिया कि हजरत आपके तो सालों के एहतिकाफ जमा हो गए होंगे, यानी आपका तो नमाए अमाल में एक 5 मिनट का एहतिकाफ, 10 मिनट का एहतिकाफ, 15 मिनट का नहीं, 25 साल के एहतिकाफ, 26 साल के एहतिकाफ जमा हो गए होंगे। क्यों? वो मैंने बताया था, इसलिए उसको नहीं बताने का। उस पर हजरत शेख ने फरमाया कि प्यारे कबूल हो जाए तो एक वक्त का भी काफ़ी है, कबूल हो जाए तो एक वक्त का भी काफ़ी है। इस पर मुझे हिम्मत आ रही कि 5 दिन बाकी है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, पता नहीं अल्लाह ताला किसको कबूल कर ले और किसको अता फरमा दे। अल्लाह जल्ले जलालो मुझे और आप हज़रात को तौफीक अता फरमाए। मैंने किसी को या तुम्हारी पनामा सिटी को बदनाम करने के लिए नहीं कहा है, जो भी कहा है अल्लाह के रज़ा के लिए कहा है, लेकिन इसके ऊपर गौर करो और सोचो, कुछ है कोताही तो इसको दूर करो, और अगर कोताही नहीं है तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।